Okay, so those were the introduction. Okay, now I'll tell you about RT, what this RT actually is, how the exam pattern is being planned, and how it is being conducted. Whom are the organization responsible for the conduct of examination? Okay, and what happened suddenly? And what are the exam pattern they are taking? We have one more candidate with the name of Atul. Atul, do we have introduction yesterday? I don't even remember it clearly. कल हमने Yes, sir. किया Yes, था. sir. Driving simulator training center. Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है okay got it thank you यार. I forgot just for a while. ठीक है got it. So again I need to explain the RT things like whenever newcomers are joining I need to explain it multiple times. ठीक है. So uh, about the RT exam. ठीक है. About the RT exam. The agency which is responsible for the conduct of RT, ठीक है, for now, अभी तक के लिए जो एजेंसी आरटी एग्जाम के कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डब्ल्यूपीसी, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग. ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. नाउ later on this exam will be handed over to DGCA. Actually the circular has been passed. Exam will be taken over by DGCA, but that will be from month of December. Okay, from December 2025 it will be taken by the DGCA. Okay, for the time being in August and in October. Okay, August का exam will be conducted by DGCA, sorry, WPC Delhi, and in October WPC Hyderabad. ठीक है, these two agencies will conduct the examination for now upcoming 2 sessions. उसके बाद this will be transferred to DGCA. So exam pattern, exam type, whatever WPC has shown or whatever WPC is asking, that we knows for the time being. We don't know what DGCA is going to ask once they take the charge. ठीक है, वो जब उनका ऊपर आएगा एग्जाम लेने के लिए तो एग्जामिनेशन में वो क्या पूछेंगे, कैसे प्लान करेंगे, वी डोंट नो. ठीक है, नोबडी नोज. बट डेफिनेटली वन सर्कुलर विल कम टू एक्सप्लेन द एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, सिलेबस एंड कंडक्ट. अभी तक के लिए हमें बस इतना ही पता है. दिसंबर से एग्जाम डीजीसीए लिया करेगी. 2 पार्ट में एग्जाम लिया करेंगे. यस, फर्स्ट वन विल बी प्रोबेबली रिटन एग्जामिनेशन विद एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड ऑल, एंड सेकेंड विल बी ओरल और प्रैक्टिकल टेस्ट. ठीक है. एग्जाम का फीस होने वाला है 7500 रुपए, 7500, एंड फॉर नाउ exam fees is 500 only. So this is going to be the changed once DGCA is taking the charge. Okay, so upcoming 2 sessions we are having WPC exam pattern, syllabus, questions, everything is repeated and following the old pattern and criteria. Okay, so we knows how WPC is conducting the examination and we will follow that. For the exam syllabus, or you can say exam criteria, like अपना DGCA module examination हम लोगों को मिल जाता है in the CR66 कि which topics they'll ask the question, which topic they'll refer for the question making and everything. But in RT there is no any clarity over that. ठीक है, अभी तक इसको डिजिटली पब्लिशमेंट में नहीं ढूंढ पाया हूं मैं. इवन nobody knows कि where they had published such things. If they had published something, then that might be an era of hard copy, जहां पे उन्होंने बुकलेट फॉर्मेट में या लीफलेट के फॉर्मेट में पब्लिश किया होगा. डिजिटल लाइब्रेरी में कहीं भी ये चीज अवेलेबल नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, क्या उनका सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा. ठीक है. So we are following the transfer of information by our seniors. हमने जो अपने सीनियर्स से पढ़ा, ठीक है, वो हम आपको पास ऑन करेंगे. आप लोग जब पास आउट होगे या आप लोग जब एग्जाम क्लियर करोगे तो अपने जूनियर्स को वही सेम क्राइटेरिया पास ऑन करोगे टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट इफ डीजीसीए विल कम इनटू द चार्ज, ठीक है, आई होप कि दे विल पब्लिश द सेपरेट एंड क्लियर सिलेबस आउट ऑफ इट. ठीक है, सो दैट इज टू बी सीन लेटर ऑन. फॉर नाउ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में
क्लियरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लियरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। डन। सो if you want to clear the RT, ठीक है, I won't say with us or with me only, you can join or you should take coaching by anyone. कहीं से आप जरूर पढ़ो और वहीं से प्रिपेयर करो। If you plan to study by your own, ठीक है, I won't say you cannot pass, but it will be very hard for you, ठीक है। Even if you are a extraordinary student, then only you can pass by your own. Otherwise, you should definitely take someone's guidance, ठीक है। Nobody can pass without guidance because syllabus is not clearly defined anywhere. आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, either fully or partially, ठीक है। Now, I hope everyone is clear about the conduct of RT examination, conduction agency who is conducting this examination, because when you are going to attend part 2, ठीक है, वहां पे पूछ लेते हैं कि कौन सा एजेंसी आरटी एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज, यू नीड टू से WPC विंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो WPC is responsible for the conduct of RT examination. Now, about the exam type and exam pattern, ठीक है, this examination is being conducted in 2 parts. Please anyone confirm if my shared screen is visible. मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं विजिबल है सबको? Yes, no, anything? Yes, it is visible. ठीक है। Now, RT exam is being conducted in 2 part, ठीक है, part 1 and part 2, ठीक है। Both of the part, ठीक है, both of the part will be conducted at the same time, ठीक है। Means suppose if you have exam date on 22nd of 20 of July, ठीक है, then you will be attend part 1 first. If you have cleared part 1, maximum within half an hour to 1 hour, ठीक है, 30 minutes to 1 hour आपको ब्रेक मिलेगा और you will be taken for the part 2. तो एक ही साथ एक ही एग्जाम स्लॉट में आपको दोनों पार्ट अटेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड दिस एग्जामिनेशन इज आल्सो हैविंग नो क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन। क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन का क्या मतलब हुआ? सपोज इफ यू हैव क्लियर्ड पार्ट 1, ठीक है, बट फेल्ड टू क्लियर पार्ट 2, सो इट डजंट मीन कि नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ पार्ट 2 देना पड़ेगा, नहीं, अगली बार आपको फिर से दोनों पार्ट देने पड़ेंगे, 1 and 2 बोथ। इसका क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा टू द न्यू एग्जामिनेशन। तो हर बार आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पढ़ना है, दोनों क्लियर करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, ठीक है, नो क्रेडिट ट्रांसफर। पार्ट 1 का एग्जामिनेशन, ठीक है, इज ऐसे आंसर राइटिंग टाइप, ठीक है, आपको आंसर लिख लिख के आंसर करना पड़ेगा, ऐसे आंसर राइटिंग टाइप, और यू कैन से सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर रहते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 is as similar as your oral or viva examination, ठीक है। Now, for part 1 and part 2, as I told, आपको मैक्सिमम आधे घंटे से 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। डन। एंड अभी तक हमने जो भी एग्जाम दिया होगा, मोर ओवर व्हाट यू हैव नोटिस्ड और ऑब्जर्व्ड, कि एक क्लासरूम में 50 से 60 कैंडिडेट बैठे रहेंगे, ठीक है, एंड देयर विल बी वन इन्विजिलेटर, ठीक है, हु कैन मॉनिटर ऑल, राइट। आप किसी भी टाइप का एग्जाम आपने अभी तक आपने अटेंड किया होगा, सो यू मे फील द सेम कि फॉर द मल्टीपल स्टूडेंट्स देयर इज वन इन्विजिलेटर, बट हियर इन आरटी दिस इज नॉट लाइक दैट। वन कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड विथ वन एग्जामिनर, हर एक कैंडिडेट के लिए एक एग्जामिनर रहेगा, और एक बार में मैक्सिमम 6 से 8 कैंडिडेट का एग्जाम होगा, ठीक है, 6 to 8 कैंडिडेट, नॉट मोर देन दैट। So if you are a student sitting here, examiner can observe you from behind, ठीक है, वो आपको पीछे से मॉनिटर करेंगे 1 on 1, ठीक है। एंड द पार्ट 1 आंसर
is not only essay answer writing. You need to speak your answer at the same time. लिख लिख के बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? यानी बोलना और लिखना दोनों एक्शन एक साथ परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि पहले फटाफट आंसर लिख लेते हैं फिर बोल दूंगा, या फिर पहले बोल देता हूं फिर फटाफट लिख लूंगा. नो, आइदर वे नॉट एक्सेप्टेबल. Essay, answer writing, and verbal, both action to be performed at the same time, and those will be monitored clearly by your examiner. वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता रहेगा बीच बीच में, ठीक है? पार्ट 1 एग्जामिनेशन में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है. 25 मिनट्स आपको एक्चुअल टाइम मिलता है, ठीक है? एंड पासिंग स्कोर इज 50. इट्स नॉट बेस्ड ऑन द कट ऑफ सिस्टम कि इस बार का कट ऑफ 62 गया, इस बार का कट ऑफ 65 गया, या जिसको 70 से ज्यादा आएगा वो इस बार पास किया जाएगा. नो, इफ यू स्कोर 50 यू विल बी ट्रीटेड एज पास, ठीक है? पार्ट 1 का. एंड पार्ट 2 द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड बाय 2 एग्जामिनर, 2 सेपरेट, ठीक है? बट दे विल नॉट सिट टुगेदर. One will be from DGCA, ठीक है? And another examiner will be from WPC. They won't sit together. They'll conduct separately. 15-15 minute each. 15-15 मिनट दोनों लोग अलग अलग, ठीक है? They'll ask their own question, regulation, safety precautions, CR related. WPC will ask some technicalities, ठीक है? For part 1, ठीक है? Now we'll see who are the students who can appear for the RT examination. The basic qualification to appear in the RT examination is only 10th passing. If you have passed your class 10th, you can apply for RT examination. Doesn't matter which area you are working in or which qualification you have taken upon. कुछ नहीं, 10th pass हो आप appear कर सकते हो, ठीक है? Now, if you are a flying candidate, ठीक है, you should definitely go for RT, otherwise your pilot license won't be issued. If you are an AME, और अगर आप B2 AME हो, ठीक है, आपका स्ट्रीम एवियोनिक्स है, then it is mandatory for you, ठीक है? Otherwise your B2 AME license won't be issued. If you are a B1 mechanical AME, this is totally optional. If you want, you can have it. If you don't want, leave it. Doesn't require, ठीक है? If you are a flight dispatcher or in operation team and by any means you want to communicate with ATC, आपके पास RT license होना चाहिए. Yesterday I have to came about some more information with some our candidates only, ठीक है? If you are operating any unmanned aerial vehicle, drones or any machine, ठीक है, beyond visual range flying, ठीक है, beyond visual range का ऑपरेशन अगर आप करते हो, you should have RT license to communicate with local ATCs, ठीक है? So the basic target is, if you want to communicate with ATC by any means, आपके पास RT लाइसेंस होना चाहिए. तो अगर आप इन सारे एरियाज में काम करते हो, RT लाइसेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? इफ नॉट, doesn't require, ठीक है? Even don't even bother about that. If you are a mechanical engineer, not required, ठीक है? If you are a avionics, compulsory. If you are a flying candidate, it is compulsory, and some other based upon your requirement, ठीक है? So for the part 1, doesn't matter which area you belongs to, questions will be same for all, ठीक है? Whether you are a flying candidate, AME candidate, flight dispatcher, any other field student, ठीक है? Questions will be same for all, part 1. But in part 2, the questions will be asked as per your stream and work environment. If you are a flying candidate, definitely they are going to ask questions about flight operations, planning, and operation related questions. If you are an engineering student, they are going to ask total technical engineering terms, ठीक है? If you are a college student, yes, if you are a college student, they'll ask some simple questions like basic tools and all, ठीक है? So in part 2, they will definitely ask the questions
as per your work environment, but for part 1 it is same for all. क्लियर है सबको ये वाला चीज? Yes, sir. Now you can have a sample question of part 1. ठीक है, as you can see this is the sample paper of part 1. part 1 में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट एग्जैक्ट यही, सिमिलर टाइप. ठीक है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे as I told earlier, and each questions will be allocated with 20 marks. ठीक है, full marks is 100 and examination time is 25 minutes. Moreover, you can say half an hour because 5 minutes you can consume for marking your attendance, taking the question papers and all. Okay, 5 questions will be asked and from 1 to 4th, okay, all questions will be subjective and essay answer writing type. आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा. But for question number 5, this question is bonus for especially for AME candidates, because in question number 5 more often they'll ask the fill in the blanks, true false, correct incorrect, full forms, ठीक है, definitions, such questions only. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा आपको ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स से मैच करता हुआ दिखेगा. ठीक है, सो इफ यू prepare well, this only question is going to give you 20 marks and out of 4 you can score 30. 50 is the passing marks. ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंप्रेशन का कोई रिक्वायरमेंट है कि 50 पे कैसे पास कर दूं, कम से कम 60 तो लाओ. नो, नथिंग. इफ यू स्कोर 50 दे विल पास. ठीक है, इवन 51, 52 कोई रेसिज्म नहीं है कि 50 ही क्यों लाया, थोड़ा और ला सकते थे. नथिंग. 50 मींस 50. ठीक है, कुछ हो सकता है स्टूडेंट के मन में कभी रहता होगा कि कम से कम 60-65 लाओगे तो पास किए जाओगे. नहीं, 50 is the passing marks. 50, I have seen many examples who has cleared on the 50. ठीक है, now out of all these 4, whatever the exam you have appeared till the time, you might have seen कि suppose आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 का आंसर नहीं आया and you knows the answer of question number 10, so you can directly jump over it. पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे दो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का दे देंगे, क्या दिक्कत है. But here in RT this is not permissible. ठीक है, answer all the questions in ascending order. It means if you cannot answer the question number 1st, you cannot jump to question number 2nd. If you don't know the answer of question number 2nd, you cannot answer question number 3rd. This is the prime requirement. So you need to answer all the questions in ascending order only. ठीक है, अगर आप सेकंड का आंसर नहीं कर पाए तो थर्ड पे आपको आंसर करने नहीं दिया जाएगा. क्लियर? So these are the requirements of RT part 1 and RT part 2, as I told, that is totally an oral or viva. ठीक है, and that thing is totally dependent on your work area. ठीक है, don't even think they'll ask irrelevant question they'll definitely never asked. ठीक है, whichever area you are working on, they'll ask questions according to that only. ठीक है, if you are working as a technician, definitely they are going to ask questions, some of the safety precautions about aircraft systems, about airport you are working on. ठीक है, if you are a college pass out student, you have not started working yet, if you are working in documentation area, quality planning or anything, they'll ask the question regarding your work environment. ठीक है, like one of a student told ki one is from drone section, one is from simulators. Trust me, they are going to ask the questions regarding simulators. ठीक है, but it doesn't mean कि they won't ask you about anything about AME. ठीक है, आपका जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, but the more focus they are going to provide about your current work environment. That's all. ठीक है, that is for part 2. But for part 1, everything is same. Question is same for all candidate. ठीक है, no difference, no separate syllabus, no separate pattern. You need to act as a pilot. Basically in part 1,
दे आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट द कंडक्ट ऑफ फ्लाइट। आपका एयरक्राफ्ट एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाएगा, बीच बीच में आपको एटीसी से क्या सारी कम्युनिकेशंस करनी पड़ेंगी, एज अ पायलट आपको उस चीज का आंसर देना है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो। किसी भी टाइप के अगर आपको डाउट आ रहे हो आप पूछ सकते हो। यस, ओपन टू ऑल। Go ahead, have some query, guys. ठीक है। Any question, any simple questions coming into your mind regarding exam pattern and type? Please do let me know. पूछो, कुछ भी तो पूछो। कैसे एग्जाम होगा, क्या एग्जाम होगा, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं क्या? बताओ बताओ, किसी भी टाइप का डाउट। No, sir. ठीक है, ओके। सो इफ आई टेल अबाउट आवर प्लान फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, एज आई डिफरेंटली सेज, ठीक है, आपने फील्ड में अभी तक जितने भी हैवॉक, ठीक है, आई मार्क दिस सिनेरियो एज अ हैवॉक, आपने आरटी का जितना भी हैवॉक सुना होगा अपने सीनियर्स से, अपने सुपीरियर्स से, कि बहुत टफ है, मेरे को 5 बार लग गया, 7 बार लग गया, 8 बार लग गया। यस, they may have taken 5 times 8 times to clear the RT, ठीक है। Even I have seen the multiple examples from my superiors when I was planning for the RT, everyone was saying कि एग्जाम इज टू टफ, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, 8 बार में निकलता है, 10 बार में निकलता है, रो के निकाला, गिर गिरा के निकाला, लाइक दैट। बट ट्रस्ट मी, whatever I have understand about RT and whatever I am sharing to the candidates, not only me, there are many instructors like me, ठीक है। अगर आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और प्लान के साथ पढ़ने जाओगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट इवन इन योर सिंगल अटेम्प्ट। एंड हार्डली इफ यू आर लेबोरियस, ठीक है, इफ यू आर लेबोरियस हार्ड वर्किंग, हार्डली इट विल टेक 2 अटेम्प्ट्स, उससे ज्यादा तो नहीं लेगा, ठीक है। बट इफ यू आर अ बैड लक गाय देन इट माइट टेक 3 to 4 टाइम्स। अगर उससे भी ज्यादा लग रहा है देन समवेयर यू आर लैकिंग, कहीं ना कहीं तो आपके प्रिपरेशन में फॉल्ट है, दैट्स ऑल। बट अगर आप एक क्लियर प्लान के तहत पढ़ने जाओगे तो आपको मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट लगेंगे एक बार एग्जाम को समझने में, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज सच कि 1-to-1 मॉनिटरिंग जब होती है ना तो स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं। आपके अगर सामने कोई चढ़ के आपसे पूछने लगे तो आपको आधा ड्रेस ही लग जाएगा। इवन विद द एग्जामिनेशन वर्ड, आपसे कोई इंटरव्यू का बोल दे, एग्जाम का बोल दे, आधा पैर लड़खड़ा जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस आरटी इज लीडिंग रिगार्डिंग द नर्वसनेस, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। इफ यू हैव स्टेज फियर और यू हैव परफॉर्मेंस फियर देन डेफिनेटली you should you should be hunt of nervousness, ठीक है। you should definitely be hunted over by nervousness। आप जरूर, आपका पैर लड़खड़ाएगा, गला सूखने लगेगा, आपको आंसर करते नहीं बनेगा। so one attempt you might take to get familiarized with, ठीक है। but another time if you plan in a nice way it won't take more than 2, ठीक है। 2 से ज्यादा बार अटेम्प्ट आपको नहीं लगेंगे। so for me this is Kausalya Academy and we are having a plan of 1 month, ठीक है, almost 1 month, where you are going to have 25 interactive lectures, ठीक है। 25 interactive lectures means 25 दिन नॉन स्टॉप, सैटरडे संडे, no, in no case I am going to give you week offs, ठीक है। वीक ऑफ्स नहीं मिलेंगे आपको, सैटरडे संडे कभी भी क्लास बंद नहीं होगा। every continuous 25 days you need to appear from 9 o'clock to 11 o'clock in the evening, ठीक है, रात में 9 से 11। नो सैटरडे संडेज, नो हॉलीडेज, नथिंग, ठीक है। रात में 2 घंटा डेली। एंड यस, वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा टाइमिंग अदर देन दिस, ठीक है। 9 से 11 के अलावा कोई दूसरा क्लास का कंडक्ट टाइम नहीं है। आपको 25 दिन के लिए 9 से 11 अवेलेबल रहना पड़ेगा फॉर द इंटरेक्टिव सेशन। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब यह है कि यू कैन नॉट सिंपली ऑब्जर्व द सेशन, ठीक है। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि आप सिंपली उस सेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो।
या क्लास में शांति से बैठ के सिर्फ सुनते रहोगे। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई विल आस्क क्वेश्चंस फॉर ईच वन ऑफ यू, यू शुड गिव द आंसर्स, ठीक है, if you are going to be the part of preparatory batch. As you can see in the plan, many of the lectures is a part of mock practices. So mocks and practice cannot be one-sided. So you should be interactive. ठीक है, this is 25 days interactive sessions. ठीक है, तो आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा along with pen and paper. ठीक है, just be very clear, along with pen and paper, because you need to write and speak at the same time. So we are going to practice during our class only for this. And if you are lacking anywhere, trust me, अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो ना, कौन सा प्रैक्टिस हमको अटेंड करना है, या पेन एंड पेपर लेके हम नहीं पढ़ेंगे तो भी हम लास्ट में 5-7 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट इज द थिंग देयर यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। अगर आपने इसको बाईपास करने का सोचा भी, you are going to make mistakes and results will not be assured for you. Trust me. अगर प्रैक्टिस सेशन है, आपको अपीयर करना पड़ेगा। इफ आई से इंटरेक्टिव सेशंस, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे क्लास में, डिस्कशन करने पड़ेंगे along with me. अगर आप इससे कहीं भी बचने की कोशिश करोगे, रिजल्ट इज नॉट assured. और यही सब एरिया है जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, तो उनको 5 बार 7 बार या 10 बार लगता है एग्जाम पास करने में। ठीक है, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आपने टॉपिक्स को इंटरैक्टिवली नहीं पढ़ा, बोथ वेज, जो मैंने पढ़ाया आपने अगर उसको मेरे को वापस फीडबैक की तरह नहीं दिया, तो आप वहीं पे लैग कर रहे हो फॉर द एग्जामिनेशन। सिंपली वीडियो ऑब्जर्व करके पढ़ना डेफिनेटली इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट यू कैन सिंपली हैव इट। ठीक है, बट फॉर मी लाइक अस, आई एम अ मीडियोकर स्टूडेंट, so I cannot say कि that will help you for the examination. तो आपको पेन एंड पेपर के साथ अवेलेबल रहना पड़ेगा। Now you can ask कि sir I work in shifts, I cannot available every day with pen and paper. How it can help me? ठीक है, every day recording sessions will be there. ठीक है, recordings will be for every day and it will be shared with drive folders. ठीक है, and for few days YouTube पे भी मैं इसको अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, but I cannot promise you to upload every lectures in a sequential manner on YouTube. ठीक है, हमारा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे रिकॉर्डिंग सेशन आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, बट फॉर दैट यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट। अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको सारे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। ठीक है, along with the study materials and all. Now, if you are working in shifts, तो मैं सबसे टफ एग्जांपल लेता हूं इंडिगो के शिफ्ट का, जहां पे 2 days नाइट, 2 days आफ्टरनून एंड 2 days मॉर्निंग का शिफ्ट करवाया जाता है, राइट? सो इफ यू आर एब्सेंट फॉर कंटिन्यूअसली 2 days, ठीक है, सो आवर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, ठीक है, अपना प्रिपरेशन पैटर्न इज डिफाइंड इन सच अ वे कि अगर आपका 2 दिन का स्टडी गैप होगा ना, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू। ट्रस्ट मी, 2 दिन का ब्रेक आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा, आपके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बट इफ यू कंटिन्यू टू एब्सेंट फॉर अपकमिंग 4 days, then that will be a problem for you. ठीक है, I'll be very honest and tell you clearly. अगर आप 2 दिन एब्सेंट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप उसके कंसिक्वेंटली 2 और दिन एब्सेंट मार लिए, 4 दिन कंटिन्यू एब्सेंट हो गए कि पिछला क्लास तो छूट ही गया, अब पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर इस टाइप के अगर आप क्या कह सकते हैं, बाद में ऐसा अगर आप बिहेव करोगे कि 4 दिन एब्सेंट कर लो, पिछला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन और एब्सेंट मार लेते हैं, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट यू डेफिनेटली। अगर आप 2 दिन एब्सेंट करते हो, रिकॉर्डिंग है, आप उससे कवर अप कर लो। अदरवाइज ऑल्सो व्हेन यू रिटर्न टू 3rd and 4th day, that will be revised and recapped for you. But 4 दिन अगर आप absent मारोगे continuously, definitely you are going to lose some of the things. ठीक है, so at least आपको 25 दिन का preparatory plan बनाना है अपने लिए। ठीक है, and if you are working in shift and RT is so important for you, then I'll recommend please go and talk to your shift managers. ठीक है, कि सर 1 महीने के लिए मुझे जनरल शिफ्ट एलोकेट कर दो, बिकॉज आरटी एग्जाम इज रियली नीडफुल फॉर मी, दैट कैन ट्रांसफॉर्म आवर करियर
दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर आवर प्रोग्रेस। तो 1 महीने के लिए मुझे जनरल शिफ्ट कर दीजिए सर, मैं उसके बाद जिस भी शिफ्ट में काम करवाना चाहोगे आई एम रेडी फॉर दैट। तो अगर आप ऐसे बातें कर सकते हो तो 1 महीने के लिए जनरल शिफ्ट चूज कर लो, ठीक है? क्योंकि 1 महीने का फुल डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर आरटी। अगर आप 30 दिन, ठीक है, दिस इज 25 लेक्चर्स, देन देयर विल बी मोर मॉक्स। अगर आप 30 दिन का टाइम आरटी के पीछे नहीं दे सकते, देन समथिंग दैट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, ठीक है? आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है? एंड for the fees of this classroom program, for the 1 month it is 4500 that is well published everywhere, ठीक है? You might have seen multiple times throughout the groups. It is 4500, which is much less than any other institution I have known. मुझे जितना पता है उन सब में से बहुत ही कम फीस है ये 4500 that you need to pay, ठीक है? And as everyone is एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर ओल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, ठीक है, कि एक बार पे कर देंगे तो जिंदगी भर के लिए पढ़ सकते हैं। यस, दैट ऑप्शन वाज देयर, डेफिनेटली आप एक बार पे करो, कितने भी बार पढ़ो। बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई वोंट लाई इवन अ बिट टू यू, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पे कर दिया तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, ठीक है? दैट इवन लुक्स गुड फॉर यू, आपके लिए भी ये चीज अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आप मेहनत करो और इतना ज्यादा प्रयास करो कि कम से कम अगले 2 अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि आफ्टर दैट इज गोइंग टू बी चेंज ड्रास्टिकली। फीस सीधे 500 से 7500 हो रहा है। अभी तक में क्या कि आप अगर एक बार एग्जाम फेल कर गए तो अगली बार दे सकते हो। डीजीसीए में एक बार फेल हो गए 3 महीने तक एग्जाम नहीं दे पाओगे। आफ्टर दैट इफ यू फेल्ड कंटिन्यूअसली 3 टाइम्स, 1 ईयर का बैन अलग से लगेगा आपके ऊपर। सो व्हाई यू आर गोइंग टू टेक दैट रिस्क, ठीक है? आप फीस पे करो, कंटिन्यू करो, ठीक है? आई कैन नॉट एश्योर यू कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डीजीसीए पैटर्न ऑल्सो मैं आपको उसी फीस पे कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है? बट मैं अपने साइड से इतनी गारंटी जरूर ले सकता हूं कि इफ आई फाइंड यू लेबोरियस, ठीक है, अभी तो पुराने स्टूडेंट्स ने कोई ज्वाइन नहीं किया, इफ आई फाइंड यू लेबोरियस बाय एनी मीन्स, ट्रस्ट मी, आई वोंट आस्क फॉर अ पेनी आफ्टर दैट। मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करूंगा, इवन एक पैसा नहीं मांगूंगा, बट दैट डेडिकेशन शुड बी विजिबल टू मी। वो मुझे दिखना चाहिए कि आपने मेहनत तो बहुत करी, थोड़े से फॉल्ट के लिए आप चूक गए तो कोई बात नहीं, डीजीसी एग्जाम ले ले या कोई भी एग्जाम ले ले, वट एवर विल बी द मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपको पास करना ही पड़ेगा, चाहे एग्जाम कितना भी टफ हो, कितना भी डिफरेंट हो। जो चीज जिस चीज की रिक्वायरमेंट ही वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब वो सिनेरियो आएगा, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। बट ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि फ्री है जिंदगी भर के लिए, ठीक है? अगर कोई बोल रहा है, ट्रस्ट मी, मैं किसी पे ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा या किसी के ऊपर रिमार्क नहीं करूंगा, बट ट्रस्ट मी, वंस द डीजीसी विल इंट्रोड्यूस देयर सिलेबस, दे आर आल्सो गोइंग टू चेंज देयर थॉट्स, ठीक है? वो भी उस टाइम पलटी मार देंगे कि ऐसा थोड़ी है कि एक बार फीस दे दिए तो मैं जिंदगी भर पढ़ाते रहूं, ठीक है? दैट इज द ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। अगले 2 टाइम के लिए यस, डेफिनेटली इट इज फ्री, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपका थिंकिंग ही वो ऐसा रहे कि एक बार पे कर दो, कंटिन्यूअस जिंदगी भर पढ़ लो। वो आपको सूट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। आप खुद गिल्टी फील करोगे कि आपको एग्जाम पास करना है, रिजल्ट लाना है, उस चीज के बारे में मत सोचो कि एक बार पे करके कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। दैट इवन लुक्स टू इवन थिंक अपॉन, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपकी मेहनत रहेगी, डीजीसी एग्जाम पैटर्न ले आए, कोई भी एजेंसी एग्जाम ले ले, कितना भी टफ एग्जाम ले ले, if that will be under the control of mine, I'll definitely help you guys, ठीक है? अगर वो चीज मेरे कंट्रोल में रहेगा मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है? बट अगर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेबस ले पाता है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो आई कैन नॉट हेल्प यू देयर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? whom so ever is saying कि वो कर देंगे, बाद में पलटी मार देंगे हर कोई ऐसा ही करने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है? सो आई एम वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट एट लीस्ट। So this was the exam pattern, conduct and introduction of this institution. How I am going to take you for the preparatory session and how you are going to appear for the examination. Okay, everything is clear to you?
डन। फीस इज 4500, वन टाइम पेबल, आप एक बार पे कर लो, उसके बाद फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लो, कोई बात नहीं। एंड once you pay the fees, you will receive exam sorry study materials after that, ठीक है। For the study materials, if I share you clearly, ठीक है, I have very interactive study material, ठीक है, with full of synoptics and diagram as you can see over your screen, ठीक है। I do prefer to introduce photograph, pictures and diagrams for the easy preparations. These all are my hard work, ठीक है, what I have copied and pasted from the Googles and some other sources, क्योंकि कोई भी स्पेशल बुक इसके लिए बना नहीं है आरटी के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने क्लास का नोट्स बनाया है अपने साइड से, वो मैं क्लास में यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉट एवर द मटेरियल्स विल बी गिवन टू यू, दोज आर मच एनफ, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल्स में नोट्स, सर्टेन बुक्स एंड हैंडआउट्स मिलेंगे जो कि आपका हेल्प करेंगे। उसके अलावा यू आर गोइंग टू हैव सो मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, some of the questions has been made by me, some of the questions has been made by some other tutors or some other students, old students जिन्होंने काफी मेहनत करके बनाया, those will be shared to you, ठीक है। many of the interactive aircraft systems and aircraft diagrams, ठीक है, photographs, current examination scenarios, current aircraft and cockpit views, ये सब मैं आपके लिए एग्जाम स्टडी मटेरियल्स का पार्ट है, सो दैट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द टॉपिक यू कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारा अपना हैंडआउट्स एंड स्टडी मटेरियल है। ऑल दीज थिंग्स यू विल रिसीव वंस यू टेक एडमिशन, ठीक है, बाय पेइंग द फीस। फॉर द बुक, एज आई सेड, देयर इज नो any book which has been made for RT. If someone have told you earlier or you are known to this, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आर के बाली का बुक पढ़ लो आरटी के लिए, trust me, that is not sufficient. As you can see over the book only, क्या लिखा हुआ है, एयर रेगुलेशंस फॉर सीपीएल एंड एटीपीएल, पायलट और डिस्पैचर के लिए रेगुलेशंस का बुक है ये, आरटी का बुक नहीं है आर के बाली। यस, certain questions and MCQ in the part 2 they are asking which belongs to RK Bali book. Many definitions you can have in this book, but this book is not sufficient for RT, ठीक है। तो इसके लिए कोई सा भी बुक डिफाइन नहीं किया गया है, कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया है। तो किसी के भी बातों में मत आना कि ये बुक पढ़ लो आप पास हो जाओगे, ऐसा पढ़ लो आप पास हो जाओगे। चाहे मेरे से पढ़ो या किसी भी और टीचर से पढ़ो, पढ़ो जरूर, कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत है, तभी आपका आरटी हो पाएगा विथ अपकमिंग सेशंस, ठीक है। क्लियर टू ऑल? ठीक है एवरीवन, आर दोस थिंग्स क्लियर? भूपेश, सौरभ, अतुल, एवरीथिंग क्लियर टू यू? Yeah, clear. ठीक है। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? Yes, sir. कोई क्वेरी, किसी भी टाइप का डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग? ओके, ठीक है। एंड एज आई सेड अर्लियर, दिस इज इंटरेक्टिव सेशन। इसका मतलब अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा या कुछ क्वेरी पूछा तो आपसे आंसर एक्सपेक्टेड रहेगा, और अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे देन दैट विल बी ट्रीटेड एज ओके, ठीक है। अगर आपने क्वेरी नहीं पूछी तो मैं यही समझूंगा कि आपको वो चीज समझ में आ गया इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रोग्राम। इफ यूल बी साइलेंट आई विल थिंक कि एवरीथिंग इज क्लियर एट योर एंड, ठीक है। सो डू मेंटेन दैट, दैट्स व्हाई दिस इज इंटरेक्टिव सेशन। अदरवाइज बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स तो यूट्यूब पे भी पड़े हैं, एंड देयर आर मेनी टीचर जिनका बहुत सारा लेक्चर यूट्यूब पे ओपनली अपलोडेड है। तो recordings is not going to help you much, ठीक है। I'll prefer to be participate in interactive sessions only, ठीक है। and that's why I told कि अगर आपको टाइम मिले तो अपने शिफ्ट इंचार्ज को बोलो कि सर एक महीने के लिए मुझे जनरल शिफ्ट दे दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, कहीं ना कहीं लैग रहेगा ही, ठीक है। सो इफ यू हैव कम देन आई शुड एक्सप्लेन सर्टेन टॉपिक्स टू यू, ठीक है। एक दो टॉपिक बेसिक है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड माई मोड ऑफ टीचिंग,
मेरे वोकल्स और मेरे एक्सेंट, ठीक है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, व्हाट लैंग्वेज आई एम यूजिंग, whether my English is comfortable to you or not, all these things you can see because I belongs to Bihar. Some people might have observed or say later on कि सर आप जो इंग्लिश बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट नाइसली. So there are few classes up to demo session till 10th of July. You can be at calm, ठीक है, आराम से डिसीजन लो, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको समझने की कोशिश करो. अगर मेरे स्पीच, मेरा एक्सेंट या मेरे वोकेबुलरी के वर्ड्स जो मैं यूज करूंगा, अगर आपको वो सब चीजें समझ में आती हैं अच्छे से, तभी आप इनरोल करो फॉर द फर्दर एडमिशन एंड प्रिपरेशंस. अगर आपको इन सब चीजों में कहीं भी डाउट होता है, डिसीजन इज ट्रूली योर्स, ठीक है, आप अपने हिसाब से ऑनेस्टली डिसीजन ले सकते हो कि सर नहीं, आपकी जो आप पढ़ाते हो आपकी बातें समझ में नहीं आती है, आई कैन डिसकंटिन्यू, ठीक है, दैट इज टोटली योर ओन डिसीजन. तो आप आराम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम लो और उसके बाद आप डिसीजन लो फॉर द फर्दर एनरोलमेंट एंड एडमिशन, ठीक है. कहीं भी डाउट हो, किसी भी टाइप का एक्सेंट को समझने में डाउट हो, किसी डेफिनेशन में कंफ्यूजन आए, यू कैन आस्क मी अनदर टाइम, ठीक है. एंड अनदर टाइम मींस डेफिनेटली अनदर टाइम्स मल्टीपल, ठीक है. जैसे बचपन में हम लोगों को टीचर बोलते थे कि समझ में नहीं आया तो 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, लेकिन जैसे ही हम दूसरी बार पूछते थे, टीचर गाली देना शुरू कर देते थे, ठीक है. 2 बार में तो नहीं, 3 बार 4 बार पूछ दो तो कभी-कभी पिट भी जाते थे. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं 4 बार से बता रहा हूँ, ठीक है. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर बिकॉज़ वी आर नॉट इन स्कूल, ठीक है. यू आर आल्सो प्रोफेशनल वर्कर्स, आई एम आल्सो अ प्रोफेशनल वर्कर. इफ यू हैव पेड द फीस, you are getting training, not schooling. तो आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन कितनी भी बार आए, आप पूछ सकते हो, ठीक है. आई विल नॉट बिहेव लाइक अ स्कूल टीचर कि तुम्हें मैं 2 बार से समझा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है. तो जितनी बार भी आपको समझने में लगे, टेक दैट टाइम एंड गेट इट क्लियर फॉर यू, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको अटेंड करना है इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ. तो जब भी कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, उसको पहले क्लियर कर लो. शर्माना बिल्कुल नहीं है. एंड स्पेशलिटी अबाउट माय क्लासेस इज, ठीक है, आई एम कंडक्टिंग फ्रॉम 2.5 years. आपको 6 से 8 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो 8-10 स्टूडेंट में क्या ही शर्माना, ठीक है, बिल्कुल शर्माना नहीं है. डोंट इवन बीट ऑफ शाय. कुछ भी आपको शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है. नहीं समझ में आया, मल्टीपल टाइम्स पूछो, ठीक है. बहुत सारे एग्जांपल्स और व्हाटएवर इट टेक्स, आई विल provide that to get it clear for you. Done? So very first topic I am going to start, that is radio station. ठीक है, shall I start further? Before continuing ahead, अगर किसी को कुछ query आ रहा है तो you can ask. Okay, let me begin the syllabus then. ठीक है, शुरू के 3-4-5 दिन जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, that may be repeated for the. सर आपके एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे? क्या स्टार्ट कब से होंगे? हाँ, नहीं समझ में आया, कब से स्टार्ट होंगे क्या? एडमिशन एडमिशन इज ओपन फॉर नाउ ओनली, ठीक है. एडमिशन वो हाँ हाँ, is एडमिशन इज payable. ओपन. एडमिशन इज ओपन, यू कैन पे फीस टुडे, यू कैन एनरोल फॉर दैट. एडमिशन इज ओपन, ठीक है. बट आई एम गिविंग यू सम रिलैक्सेशन की बाद में ऐसा कंफ्यूजन टाइप नहीं रहना चाहिए कि सर पैसा पे कर दिया, आप जो पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप. इसीलिए आपको रिलैक्सेशन दिया रहा है. आराम से डिसीजन लो, ठीक है. कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ना मुझे पैसों की कुछ खास जरूरत है, ना आपको मैं आपसे चढ़ के पैसा लूंगा कि नहीं अभी दे दो तभी अगला दिन पढ़ाऊंगा, नथिंग, ठीक है. आप आराम से प्लान, ठीक है. आवर मेन गोल शुड बी ऑन द एग्जामिनेशन, ठीक है. एडमिशन इज ओपन, इफ यू वांट यू कैन पे फीस टुडे, ओके ठीक सर. है. एंड इफ यू वांट टू टेक टाइम, टेक दोस टाइम्स, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है. लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे एंड दैट इज रेडियो स्टेशन, ठीक है. समथिंग इज नोन एज रेडियो स्टेशन. अब ये क्या होता है?
whenever we are communicating over VHF frequencies, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज मी एंड यू आर इंटरेक्टिंग विच ईच अदर, ठीक है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं. सो I will be treated as one station and you will be treated as another station. तो दो पॉइंट जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, these two points are known as stations. ठीक है, लाइक बोलते हैं ना पर्सन्स, एक पर्सन दो पर्सन. सिमिलरली communication is being performed in between two stations. ठीक है, at least two stations. There can be multiple, but कम से कम दो लोगों के बीच में बात होनी चाहिए. सपोज हम लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, 1 to 1, ठीक है, इंटरव्यूअर एंड मी. बट रिमेंबर द स्कूल डेज, जब आप स्पीच दे रहे होते हो, तो स्पीच में क्या होता है, एक कोई पर्सन बोलता है एंड देयर आर मल्टीपल ऑडियंस. तो वो सारे ऑडियंस आपके लिए स्टेशंस हुए, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ द स्टेशन फॉर ऑल दोज ऑडियंस. ठीक है, so if you define the radio station, ठीक है, it means any device or any unit, ठीक है, any unit or any group of unit, that is system, any device or any group of device, that is system, if they are having capability to establish communication on radio telephony network, then that is known as radio station. ठीक है, any device or group of devices, that is system, if they are having capability to establish radio communication, ठीक है, then that is known as radio station. ठीक है, इसके क्या क्या एग्जांपल हो गए, all the ATC offices, ठीक है, all the ATC के कंट्रोल ऑफिसेस, चाहे ग्राउंड हो, एप्रन हो, मोबाइल व्हीकल्स हो, कंट्रोल हो, टावर हो, अप्रोच हो, ठीक है, एटीसी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे. तो सारे टाइप के एटीसी ऑफिसेस सब रेडियो स्टेशन के एग्जाम्पल हैं. आपका एयरक्राफ्ट, आपके एयरक्राफ्ट में VHF कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, मींस योर एयरक्राफ्ट कैन आल्सो एस्टेब्लिश रेडियो कम्युनिकेशन, सो एयरक्राफ्ट इज ए रेडियो स्टेशन. All ground radio controllers, sometimes there are apron controls और follow me vehicles, उनके भी डैशबोर्ड पे रेडियो सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं. QRT के व्हीकल्स, मोबाइल ऑब्जर्वर्स, मोबाइल सुपरवाइजर्स, ठीक है, आई डोंट नो किस किस रेडियो स्टेशन, सॉरी, एयरपोर्ट पे ये चीज अवेलेबल है, बट देयर आर मूवेबल व्हीकल्स, ठीक है, वो स्पॉट चेक के लिए होते हैं, उनको बोला जाता है मोबाइल 1, मोबाइल 2, या फिर जो फॉलो मी के व्हीकल होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है मोबाइल 1, मोबाइल 2. यानी मूवेबल व्हीकल्स जो कि चेक्स करते हैं, जो कि इंस्पेक्शन करते हैं, स्पॉट चेक्स करते हैं, उनके गाड़ी में भी अगर रेडियो स्टेशन लगा हुआ है, रेडियो सिस्टम लगा हुआ है, जिससे वो किसी भी एयरक्राफ्ट या एटीसी से बात कर सकते हैं, तो उनको भी रेडियो स्टेशन बोला जाएगा. एनी पोर्टेबल और हैंड हेल्ड यूनिट, वॉकी टॉकी, आपके एयरपोर्ट्स पे कई बार वॉकी टॉकी जो कि एप्रन कंट्रोलर्स के पास, समटाइम्स मार्शलर्स के पास, नॉट ऑल कंपनीज मार्शलर्स, बट समटाइम्स अलोंग विथ मार्शलर्स इट इज देयर, अगर वो एटीसी से बात कर पाते हैं, देन दैट इज आल्सो नोन एज रेडियो स्टेशन. तो किसी भी टाइप का डिवाइस या सिस्टम अगर एटीसी से कम्युनिकेट कर पाता है, देन दैट इज नोन एज रेडियो स्टेशन. बेसिकली इफ आई एक्सप्लेन इट क्लियरली, दैट इज नोन एज एरोनॉटिकल रेडियो स्टेशन, यानी वो रेडियो स्टेशन जो कि एरोनॉटिकल फ्रीक्वेंसीज पे कम्युनिकेट कर पाए. ठीक है, बाय द कॉमन नेम इट इज स्टैंड्स एज स्टेशन. ठीक है, सबको बोला जाएगा स्टेशन. ठीक है, एंड द बिगेस्ट एग्जांपल टू फाइंड योर एयरक्राफ्ट एज एन स्टेशन इज एरोमोबाइल लाइसेंस. आप सबने एरोमोबाइल लाइसेंस के बारे में सुना है? कोई लोग बताना चाहेंगे व्हाट इज एरोमोबाइल लाइसेंस? एनीवन? कभी आपने सुना है या देखा है एरोमोबाइल लाइसेंस क्या होता है?
नहीं, ओके, कोई बात नहीं। समथिंग इज नोन एज एरो मोबाइल लाइसेंस। क्या होता है, आपके एयरक्राफ्ट को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एंड एवरीवन मार्क इट क्लियरली। पार्ट 2 में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज एरो मोबाइल लाइसेंस। ठीक है, तो अच्छे से इसको सब लोग ध्यान से सुनो और समझो। समथिंग इज नोन एज एरो मोबाइल लाइसेंस, कॉमन टर्म इसका यही है, एरो मोबाइल लाइसेंस। बट इन एक्चुअल that is an aircraft station license, means your aircraft has been marked as a station. पहले इसको एरोमोबाइल बोलते थे। मोबाइल मतलब होता है समथिंग कैन बी मूवेबल, तो हमारा एयरक्राफ्ट हवा में मोबाइल करता है, दैट्स व्हाई इट वाज एरोमोबाइल लाइसेंस। बट आफ्टर सम टाइम terms and criteria has been changed. Aeromobile license has been termed as aircraft station license, means your aircraft is a radio station. So aeromobile license or aircraft station license, this is being issued by same department जो हमारा RT एग्जाम लेता है अभी तक, WPC, Wireless Planning and Coordination Wing. This aeromobile license is nothing but a list of list of equipments, not document. This is a document which is a list of equipment कि आपके एयरक्राफ्ट में कितने सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। कितने सारे इक्विपमेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेटेड हैं और उन सारे इक्विपमेंट्स का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। आप इस चीज को एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट करके WPC के पास ले जाते हो और उनको इंटीमेट कर देते हो कि सर हमने एक जहाज बाहर से खरीद के लाए हैं, इसमें 18 से 20 इक्विपमेंट लगे हुए हैं और वो सब मैन्युफैक्चरर इन सारे कंपनीज के हैं, कोई कोलिंस का है, कोई गार्मिन का है, मैन्युफैक्चरर के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बनाने वाली कंपनी हनीवेल है, आर्टेक्स है, कोलिंस है। ठीक है, दो क्वांटिटी में लगा हुआ है हमारे क्राफ्ट में, और वो जो इक्विपमेंट है वो इस फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। बेसिकली वी आर गिविंग अ डिक्लेरेशन कि हमारे एयरक्राफ्ट में जो हमने बाहर से खरीद के लाए हैं ना, इसमें ये सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं अलोंग विद दिस फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, WPC इसको एक्सेप्ट कर लेता है इफ दैट इज इन एक्सेप्टेबल रेंज। अच्छा ठीक है, आपके एयरक्राफ्ट में ये सारे इक्विपमेंट लगे हैं, आप ऑपरेट करो। क्लियर? तो आप जब एरोमोबाइल लाइसेंस के ऊपर देखोगे तो यहां आपको मिलेगा एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस, मींस आपका एयरक्राफ्ट एक रेडियो स्टेशन है। ठीक है, एंड दिस इज बीइंग टू एलोकेटेड विथ ईच एंड एवरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। हर एक इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट के लिए इशू किया जाता है, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए इशू कर दिया, नो, ईच एंड एवरी एयरक्राफ्ट विल बी इशूड विथ एरोमोबाइल लाइसेंस। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यू कैन सी VHF कम्युनिकेशन सिस्टम में इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में 2 VHF लगे हुए हैं, उनके मैन्युफैक्चरर हैं कोलिंस, वो पावर जनरेट करता है 18 वॉट का, 118 से लेके 137 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मोर ओवर दिस इज 137 इन VHF फ्रीक्वेंसी। तो इस मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए हमारा VHF का कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करेगा, दो क्वांटिटी में लगी हुई है। HF कम्युनिकेशन सिस्टम that is going to generate 175 वॉट का पावर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर है कोलिंस, दो क्वांटिटी में लगे हुए हैं, दे आर गोइंग टू यूज 2 to 30 मेगाहर्ट्ज फॉर कम्युनिकेशन। तो लाइकवाइज वी आर गिविंग डिक्लेरेशन टू द WPC। उसके अलावा आप देखो कि हमारे एयरक्राफ्ट में एक DME लगा हुआ है, कोलिंस का है, GPS लगा हुआ है, कोलिंस का है, ट्रांसपोंडर है कोलिंस का, EGPWS हनीवेल का है, लाइक दिस। ठीक है, मॉडल नंबर उसका ये रहा सर, और फ्रीक्वेंसी कोई यूज करता है क्या? नहीं। ठीक है, फिर हमारे एयरक्राफ्ट में सेटकॉम है, कोलिंस का ये फ्रीक्वेंसी यूज करता है, यस। ELT लगा हुआ है सर जी एक, कौन सा मॉडल? आर्टेक्स का, कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज करता है? दिस मच। सो दिस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कि आपके एयरक्राफ्ट में कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं और उनका ऑपरेबल फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको?
यस नो एनीथिंग क्लियर है सबको, समझ में आ गया? या क्लियर। ठीक है। सो whenever I'll tell कि make a note, mark this, ठीक है, then those things are important. Like जो एरोमाइल लाइसेंस के बारे में मैंने अभी बताया, पार्ट 2 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एरोमाइल लाइसेंस, ठीक है, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, गिव सम एग्जांपल्स. So this Romal license, a simple copy will be definitely shared to you in the study material. You can have a look and prepare for that. Okay. So basically your aircraft is also a station. That's why we are communicating along with ATC. So if we are communicating with ATC, then ATC is one of our station and we are also one of station for them. हमारे लिए वो स्टेशन है, उनके लिए मैं स्टेशन हूं. क्लियर? ठीक है. ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही. एक टॉपिक हमने पढ़ा, एक्चुअली 2 टॉपिक हमने सीखा है, ठीक है. विल नॉट टेक मच. थोड़े शुरू में आपको ऐसे ही थोड़े टॉपिक्स मिलेंगे, सो दैट माय मेन एम इज कि जो थोड़ा भी लेट हो कैंडिडेट, अगर 1-2 दिन अप डाउन हो, तो उनको बहुत ज्यादा कवर अप करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है. ऐसा नहीं हो कि बाद में अगर कोई 10 तक में एडमिशन लिया तो बोलेगा सर आधा तो आपने पढ़ा दिया, अब मैं क्या ही पढ़ूं, फिर उसको कवर अप करने में प्रॉब्लम हो. So that's why for initially few days we'll conduct like that only, दो टॉपिक, एक टॉपिक. And from 10th of July, ठीक है, I'll tell honestly, after 10th of July, from 10th of July actually, ठीक है, you won't get time, you won't get even a moment to get relaxed, क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा है, आपको 1 महीने तक कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी पड़ेगी. ठीक है. सो आई एम कंप्लीटिंग इट हियर ओनली. आज के लिए आई थिंक दिस मच इज इनफ. ठीक है. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन, इट इज ओपन. ठीक है. नेवरदलेस यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और एनीथिंग फॉर द पेमेंट ऑप्शंस. आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू. ठीक है. एंड यू कैन ज्वाइन फर्दर. ठीक है. चलो, that's all for today. I'm completing this meeting here only for all, and we'll take you tomorrow same time. Will I hope ki everyone will join tomorrow also same time 9 to 11. ठीक है. Meeting ID and joining link will be same for entire month. ठीक है. Still I'll keep notifying for few days. ठीक है. So that's all for today. We'll hope you to see tomorrow. चलो, bye for today. हाँ.